Hello and good evening to my all sweet students. My name is Nawaz Makada and welcome to my YouTube channel Nawaz the Teaching King. In the previous video, we have discussed the levels of management in detail, and in today's video, we are going to discuss the difference between these levels of management. In the previous video we have discussed there are three types of levels of management. The first is the top level management, second is the middle level management, and the last is the bottom level management. There are three types of levels of management. The first is the top level management, thereafter the second is the middle level, and the third and the last is bottom level of management. Okay, so under the top level management, the CEO, thereafter board of directors, these are included in the top level of management. And if we talk about the middle level management, in the middle level management, different departmental officers are included इन दी मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, और बॉटम लेवल मैनेजमेंट क्या है और उसके फंक्शन क्या है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा? CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो सब किस में आएंगे? दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन दी top level management. And thereafter if we move to the middle level management, under the middle level management there are different departmental officers. जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे हमारे बिजनेस में, हमारे कंपनी में, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, उसके बाद परचेस डिपार्टमेंट होगा. ओके, सो जितने भी इसके ऑफिसर्स होंगे, दिस ऑल ऑफिसर्स आर इंक्लूडेड इन द मिडल लेवल मैनेजमेंट. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द बॉटम लेवल मैनेजमेंट, इन दी बॉटम लेवल मैनेजमेंट उसमें सब सुपरविजर्स होंगे. सुपरविजर्स आर रिस्पॉन्सिबल for checking their departmental activity, whether the work is going on according to the set standard by the टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब सुपरविजर्स का काम क्या होगा कि भाई जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो हमें काम बताया है उस तरह से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब चेक कौन करने वाला है? इट विल बी चेक्ड बाय दी सुपरवाइजर्स. सो ये मैंने आपको रिविजन करवाया. नाउ वी विल मूव टू दी difference between top level management, middle level management and the bottom level management. Okay, so let's start without wasting time. So first, and whenever you are writing, listen carefully, whenever you are writing the difference in the examination, you must write the point of difference like this given headings. Okay, the first point of difference is the management and administration. Now top level management, if we talk about the top level management, proportion of management is more and administration is less. Why? The question arise that कि भाई management का जो proportion है वो ज़्यादा क्यों है और administration का जो वर्क है वो कम क्यों है? Because I told you कि top level management are engaged in making the policies, they are doing planning, they are performing the various functions of the top level management. अब भाई बात कर लो प्लानिंग, ओके, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग एंड देयर आफ्टर कंट्रोलिंग. ये सब क्या है? दिस आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस. ये सब करने वाला कौन है? दिस ऑल things are done by the top level management. So we can say that the management का काम क्या होगा? top level management में ज़्यादा होगा. और administration, क्योंकि वो खाली आपको orders दे रहे हैं, तो ये क्या होगा? orders दे रहा है, management का काम हो गया. और administration का काम means उसको implement करना, तो वो implement करने वाले नहीं है. इसको implement कौन करने वाला है? वो सब implement होगा by the middle level management and the bottom level management. Okay, so नाउ कम टू दी मिडल लेवल मैनेजमेंट. अब देखो आपको क्लियर हो गया होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होगा, मैनेजमेंट का प्रपोर्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा. और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रपोर्शन क्या होगा? कम होगा. नाउ मूव टू द मिडल लेवल मैनेजमेंट. सेम इज देयर, प्रपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज लेस, मीन्स ऑपोजिट ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट. If we talk about the middle level management, proportion of management is less and proportion of administration is more, because they
are responsible for implementation of the orders which are given by the top level management. जो orders टॉप लेवल मैनेजमेंट ने दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन काम होगा, जो ऑफिशियल वर्क होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और मैनेजमेंट का काम उनको करना ही नहीं है, और होगा तो भी बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसलिए उनका मैनेजमेंट का काम क्या होगा? कम हो जाएगा। आया समझ में आप लोगों को कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर बात करें तो मैनेजमेंट का काम ज़्यादा होगा और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा वो कम होगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसमें मैनेजमेंट का काम क्या होगा? कम होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होगा वो क्या होगा? मोर होगा। इट विल बी मोर इन दी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नाउ कम टू दी बॉटम लेवल मैनेजमेंट। प्रपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू लेस, सबसे कम। अगर आप टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करो, उसकी कंपेयर में जो मैनेजमेंट का काम होगा इन दी बॉटम लेवल मैनेजमेंट वो बहुत ही कम होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होगा? सबसे ज़्यादा। अब देखो मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि सब कुछ जो ऑर्डर्स देना था, जो पॉलिसीज़ बनानी थी, जो प्लानिंग करना था, वो सब किसने किया होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने कर लिया होगा। खाली उसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? सबसे ज़्यादा काम किसको करना है? बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अब देखो एग्जाम्पल ले लो, अब कोई डिपार्टमेंट है, सपोज ले लो फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब उसको ऑर्डर देगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो उसका हेड होगा वो इट इज़ इंक्लूडेड इन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब वो भी क्या करेगा? आपको ऑर्डर ही देने वाला है। वो किसको ऑर्डर देगा? सुपरवाइजर्स को ऑर्डर देगा, जॉबर्स को ऑर्डर देगा, या उसके अंडर में जो ऑफिसर्स काम करे उसको ऑर्डर देगा। तो सबसे ज़्यादा काम कौन करने वाला है? बॉटम लेवल मैनेजमेंट ही काम करने वाला है। इसलिए क्या होगा? उसका एडमिनिस्ट्रेशन काम सबसे ज़्यादा होगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ दी सेकेंड पॉइंट इज़ दी इंक्लूड्स। अब ये सब मैनेजमेंट में मैंने आपको डिस्कस किया था कौन कौन आता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर इंक्लूडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। व्हाट इज़ देयर वर्क? देयर वर्क इज़ टू मेक दी पॉलिसी, कि भाई बिजनेस को किस तरह से काम करना है, कौन सी वे में काम करना है, ये सब आपको गाइड कौन करेगा? यू विल गेट द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी। आपकी पॉलिसी बनी होगी तो ही तो आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरह से काम करना है। तो अब वो पॉलिसी बनाएगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर, आई टोल्ड यू, उसमें कौन कौन आएंगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जितने भी आपके डिपार्टमेंट होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस, वो सब के ऑफिसर्स किस में आएंगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और एक्सपर्ट्स होंगे जो एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस फील्ड्स, वो सब भी किस में आएंगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दी बॉटम लेवल मैनेजमेंट, अंडर द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, फोरमैन आर इंक्लूडेड इन इट। अब उनका काम सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, यू कैन से दी प्लानिंग। इनका काम क्या है? खाली बता देना कि आपको ये काम करना है, और ये काम करने वाला कौन है? सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, फॉरमैन, एक्सेट्रा। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट में BOD means board of directors, managing director, this all are included in the top level management. And if we talk about the middle level management, different departmental officers are included in the middle level management, and bottom level management, supervisors, jobbers, foremen, etc. are included in the bottom level management. Now come to the third point, authority and responsibility. Very easy. The first is management and administration, कि भाई मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट होगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में ज़्यादा होगा। ओके, मिडिल लेवल में उससे थोड़ा कम, और उससे सबसे कम किस में होगा? बॉटम लेवल मैनेजमेंट में। और अगर हम इंक्लूड्स की बात करें तो इंक्लूड्स में डिफरेंट कौन कौन पर्सन आएंगे उसकी बात की हमने। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। इफ़ यू टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, दी अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, के भाई कौन से डिपार्टमेंट के कौन से मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी ज़्यादा होगी, एंड कौन से मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी सबसे कम होगी। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर मोर। टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास होगी? विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि वो कौन है? वो ट्रस्टी है। वो कौन है? यू कैन से दी मिडिल लेवल मैनेजमेंट।
bottom level management, this all are included in the, this all are under the top level management. So authority and responsibility both are more. ये दोनों डिपार्टमेंट को संभालेगा, दोनों मैनेजमेंट को कौन संभालने वाला है, मिडिल लेवल की बात करें या बॉटम लेवल की बात करें, उसको संभालने वाला कौन है, टॉप लेवल। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसकी अथॉरिटी भी क्या होगी, उसके पास अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो ही वो इसको संभाल सकेगा, इसको और इसको। ओके, सो कंपेरेटिवली लेस अथॉरिटी whereas responsibility is limited to departments only। अब देखो, अगर अथॉरिटी की बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के से बहुत कम होगी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी। और इफ़ वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो जो डिपार्टमेंट होगा उसके लिमिटेड ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, सपोज मैं परचेस डिपार्टमेंट का हेड हूँ, तो मेरे को खाली किसको संभालना है, आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली एंड ओनली परचेस डिपार्टमेंट। I have to not involve in other departments, so my responsibility is limited to my department only. Okay, it is clear, right? I hope that it is clear to you. So now come to the bottom level management. List authority while responsibility is limited to subdivisions only। अब देखो, अथॉरिटी सबसे कम, अगर हम बात करें सबसे कम किसके पास होगी, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग ऑर्डर्स, दे हैव टू एक्सेप्ट द ऑर्डर्स, सो दे डोंट हैव, or they don't have the authority, or you can say they have the, if they have the authority, they have the least amount of authority। and if we talk about the responsibility, अब देखो डिवीज़न, डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे डिवीज़न होंगे, तो वो जो डिवीज़न होंगे, सपोज देर आर 4 डिविजन्स इन द परचेस डिपार्टमेंट, तो ये जो फर्स्ट डिवीज़न होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली किसके पास होगी, बॉटम लेवल में के पास। फिर सेकेंड होगा, उसकी सुपरवाइज़र के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको ये काम करना है। मीन्स क्या होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब डिवीज़न के तक ही है। और अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो पूरा परचेस डिपार्टमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, परचेस मैनेजर के पास। ओके, सो क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे कम होगी किस में, बॉटम लेवल मैनेजमेंट में, और अथॉरिटी भी सबसे कम किस में होगी, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। नाउ दी फोर्थ इज नंबर ऑफ मेंबर्स, लेस नंबर ऑफ मेंबर्स एट द टॉप लेवल। 2-3 होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उसके बाद 2-3 मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे। मीन्स लेस नंबर ऑफ पीपल विल बी इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू डू एवरी वर्क, दे आर ओनली एंड ओनली मेकिंग द पॉलिसी। उनको माइंड से ही काम करना है। ओके, उनको, they are not doing the physical work, they are not engaged in the production sales। तो उसमें क्या होंगे, the number of requirement of person will be less। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो कंपेयर टू टॉप लेवल मोर नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर एट मिडिल लेवल, बिकॉज जितने डिपार्टमेंट्स होंगे उसके सबके हेड होंगे अलग अलग, तो उसमें क्या होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट की कंपेयर में मिडिल लेवल में पर्सन ज़्यादा होंगे, और उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आई कैन से कंपेयर टू टॉप एंड मिडिल लेवल देर आर मोर नंबर ऑफ मेंबर्स, बिकॉज उनको ही तो प्रोडक्शन करना है, उनको ही तो सेल्स करना है। ओके, तो उनको ही तो रॉ मटेरियल्स दे हैव टू परचेज, दे हैव टू डू एवरीथिंग। ओके, सो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होगी पर्सन की, वो किस में होगी, अंडर द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कॉम्पिटेंस, ऑल राउंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, विच टाइप ऑफ क्वालिटीज़ यू मस्ट हैव इफ़ यू want to work under a particular department। if we talk about the top level management, so all round development, अगर आपका पूरा डेवलपमेंट हुआ होगा, then you will able to control over the other departments, other management। अब देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो क्या कर रहा है, पूरे बिजनेस को वो संभाल रहे हैं, तो आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए आपका पूरा डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट होगा, then you will able to control over the whole business। तो आपका पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए, मीन्स पूरी तरह से आप कंप्लीट होने चाहिए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज यू आर द हेड ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम करें तो आपके पास खाली स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए सेल्स के लिए, आपके पास उतनी स्किल्स होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी अ हेड ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट और अ परचेस डिपार्टमेंट, आपको वो उसकी जो फील्ड है उसकी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज फॉर वंस ओन डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट। अब अगर हम बॉटम लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट द प्रोडक्शन, यू हैव टू गिव द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट टू योर कंज्यूमर। तो आपको क्या करना है, आपके पास आपके डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपके अंदर में दूसरे डिपार्टमेंट उसकी भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए।
बिकॉज एक्चुअल में काम तो आपको ही करना है, तो आपको उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए. Thereafter, formation of objectives and policies. This level formulates basic objectives and policy of company. This level implements policy formulated by, और देखो मैं आपको एक साथ में रीड करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ओके, एंड द थर्ड एंड लास्ट इज द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. दिस लेवल implements policies and decisions framed by the top level and middle level management. Now what is the work? If we talk about the top level management, they have to set the objectives of the business and they have to formulate a policy of the company. Okay, उनका काम क्या है कि उनको जितनी भी, पहले तो उनका काम क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, उसके बाद पॉलिसीज़ बनाना. ओके, अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आ जाओ. उनका काम क्या है कि जो पॉलिसी, the policies which are framed by the top level management, they have to implement it. Okay, उनको implement करवाएगा कौन? It will be implemented by the middle level management. Okay, and if we talk about the bottom level management, this level implements policies and decisions framed by top level and middle level management. Okay, कि जो भी policies होगी, जो भी orders होंगे, जो किसने बनाई होगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, या फिर उसके बाद अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्डर दिया होगा कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट आपको भी पॉलिसी बनानी है, तो दोनों की जो पॉलिसी बनी होगी उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसका वर्क कौन करेगा, एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा उसका? इट विल बी डन बाय द बॉटम लेवल मैनेजमेंट. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज बनाएगा कौन? कौन फॉर्मेट करेगा उसको? ओके, द पॉलिसी विल बी फॉर्मेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, or you can say middle level management, and it will be implemented by the bottom level of management. It will be implemented by the bottom level of management. And the accountability means to whom you have to give the answers. Accountability means what? To whom you have to give the answer. कि आपको किसको आंसर देना है, क्या आपका काम कंप्लीट हुआ या नहीं, आपको किसको रिपोर्ट्स देने हैं. ओके, टू हुम यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट. इफ़ यू टॉक अबाउट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो इसको किसको आंसर देना है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के आगे तो कोई नहीं है. आपका क्वेश्चन व्यू होगा पर नहीं, दे हैव टू गिव आंसर्स टू देयर शेयर होल्डर्स. दे हैव टू गिव आंसर्स टू द शेयर होल्डर्स. If company is incurring a loss, then shareholders will ask you that why, what are the reasons behind this. Okay, they have to give the answers to the government departments, they have to give the answers to the government and the legal provisions. Okay, and if we talk about the middle level management, middle level management middle level management has to give all the answers to the top level management, whether they are working properly or not. It is the responsibility of middle level management. उन्होंने क्या क्या काम अभी तक किया है, कितना काम बाकी, सब कुछ आंसर उसको किसको देना है, किसको सबमिट करवाना है, किसके पास सबमिट करवाना है? टू दी टॉप लेवल मैनेजमेंट. ओके, सो वी कैन से दैट मिडल लेवल मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टूवर्ड्स दी टॉप लेवल मैनेजमेंट. एंड कम टू दी बॉटम लेवल मैनेजमेंट. अगर हम बॉटम लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो वो किसको आंसर देगा? मिडल लेवल मैनेजमेंट को. आया समझ में? इट इज़ अ, यू कैन से मिडल लेवल मैनेजमेंट इज़ अ चेन बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट. वो क्या है? एक चेन है. किसके किसके बीच में? बॉटम लेवल मैनेजमेंट के बीच में और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में. बिकॉज ये चेन मैंने क्यों बोला? बिकॉज मिडल लेवल मैनेजमेंट विल टेक द रिपोर्ट्स फ्रॉम द बॉटम लेवल मैनेजमेंट एंड इट विल सबमिट ऑल द रिपोर्ट्स टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट. So it is accountable, bottom level management is accountable towards the middle level, and if we talk about middle level management is accountable towards the top level management. Decisions. Now come to the last point of the difference. Decisions taken by this level are more risky and comparatively more far reaching to a large extent. Why more risky? Because you are taking the decision for whole the company. तो अगर कुछ जरा सा भी आपने गलत डिसीजंस ले लिया, it will affects your whole company. So it is a more
more risky you can say, इसलिए वो क्या होगा, ज़्यादा रिस्की होगा. और लार्ज एक्सटेंट मीन्स पूरी कंपनी में इसकी इफेक्ट होगी. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द मिडल लेवल मैनेजमेंट, डिसीजंस टेकन बाय दिस लेवल आर लेस रिस्की एंड फेयर रीचिंग. अब लेस रिस्की क्यों है, वाई लेस रिस्की, बिकॉज यू आर टेकिंग डिसीजंस only for your department only, not for other departments. अगर परचेज डिपार्टमेंट है तो आप खाली परचेज के लिए डिसीजन लोगे तो पूरे परचेज डिपार्टमेंट को ही अफेक्ट करने वाला है, वो पूरे कंपनी को अफेक्ट करने वाला नहीं है. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द बॉटम लेवल मैनेजमेंट, डिसीजंस टेकन बाय दिस लेवल आर लिस्ट रिस्की. मीन्स सबसे अगर कम रिस्की होगा तो किसका होगा, बॉटम लेवल में, क्योंकि आप अपने जो आपका सब डिवीज़न होगा, सपोज आपके अंडर में 4% 5% काम कर रहे हैं. ओके, आप सुपरविजर कर रहे हो, ओके, सुपरविजर और सुपरविजन कर रहे हो आप, तो आप किसके लिए डिसीजन लेने वाला हो, ओनली एंड ओनली फॉर द 4 पर्सन्स. ओके, उनके लिए ही आप डिसीजन ले रहे हो. ओके, तो उनको ही अफेक्ट करने वाले हैं, ना कि आपके डिपार्टमेंट को, ना ही आपकी कंपनी को. ओके, सो इट इज़ least risky, you can say least, सबसे कम, least risky as compared to the other departments. So here we have completed the difference between top level management, middle level management and the bottom level management. There are total 8 points of difference. The first is management and administration. The second is includes who are included in the middle in the levels of management. We have discussed board of directors, CEO, and if we talk about middle level, there are different departmental officers includes in the middle level of management, and supervisors, jobbers are included in the bottom level of management. Authority and responsibility, top level management has the highest authority. Okay, keep in your mind, thereafter number of members will be more in the bottom level of management and will be less, सबसे लेस किस में होंगे, सबसे कम इन दी टॉप लेवल मैनेजमेंट. फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, टॉप लेवल मैनेजमेंट formulates a policy and middle level management and the bottom level management implement its, or you can say bottom level management implement the policy which are framed by the middle level and the top level management. Accountability. Now if we talk about the accountability, the top level management is accountable towards the shareholders and different stakeholders of the company, and middle level is accountable towards the top level. Okay, and bottom level is accountable towards the middle level management. किसको आंसर देना है, उसको middle level management को आंसर देना है. and decisions are more risky in the top level management, less risky in the middle level management, and least risky means सबसे कम risky किसमें होंगे, decision in the bottom level management. Okay, so thank you so much for watching this video. If any doubt arises in your mind, you can ask me, you can write down in the comment box, and whenever you are watching the video, my video, please watch all the videos till the end if you want to clear your concept, because I am explaining all the points in detail. ये 5 मिनट का टॉपिक था, बट मैंने इसमें ज़्यादा टाइम क्यों दिया, बिकॉज इन ऑर्डर टू क्लियर योर कंसेप्ट. सो इफ़ एनी डाउट अराइज इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और you can ask me on my Instagram account. You can follow me on the Instagram. My Instagram ID is the same name, Nawaz the Teaching King. Whenever you want to ask any doubt in this subject, you are free to ask. Okay, so and please share this video with all your friends. So जिसको OC में बहुत सारे डाउट होते हैं, I have specially created this YouTube channel in order to clear your concept, because many students have to suffer a lot in the theory subject. तो आपको इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए मैंने ये चैनल बनाई है, ताकि आपका इंटरेस्ट, मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा आपको कि आपको मज़ा भी आएगी पढ़ने में, एंड यू विल एबल टू मेंटेन योर इंटरेस्ट लेवल. सो प्लीज़ शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए माय यूट्यूब चैनल नवाज़ दी टीचिंग किंग.